Can you all hear me? Yes. Yes. That's great. So, what we're going to do today is that first of all, you need to listen to me. Okay. On Friday, we had a quiz of GK. Okay. And we couldn't have a block of Islamiyat. So today we are going to go with Islamiyat. Are we clear? Okay. So kindly take out your worksheet pack of Islamiyat, and we are going to start from where we left. Okay. If you have any questions, Fahad, I already told you that try to raise your hand in Zoom. Okay. Try to raise your hand in Zoom, not raise your hand virtually. Okay. I cannot see you. You guys are all in such a small screen. Okay. So when you raise the hand in Zoom, I get a notification. Yes, Fahad. सर मुझे आपसे ये बोलना है कि वो आज तो जीके की इस्लामियत की थोड़ी ना। तो बेटा मैंने आपको यही बताया शुरू में कि क्योंकि फ्राइडे को हम लोगों ने जीके का क्विज रख लिया था और इस्लामियत का ब्लॉक हमारा नहीं हुआ था, तो इस वजह से हम लोग इस्लामियत की आज क्लास ले रहे हैं, क्योंकि ऑटोमेटिकली वीक में वैसे ही एक दिन होती है, सही ना। और वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी दोनों क्लास की टीचर्स मैं ही हूँ, इस्लामियत की भी और जीके की भी। और इंशाल्लाह बाद में जैसे हमारा नया टर्म स्टार्ट होगा तो उसमें आपको इस जगह पे इस्लामियत तीनों मैं ही पढ़ाऊँ, सही है। तो ये होता रहेगा, जब मेरा दिल करेगा मैं आपको ज्योग्राफी के ब्लॉक में हिस्ट्री पढ़ाऊंगी, because I'm a teacher. Okay, so we are going to start with our today's lecture. Okay, I hope that confusions are clear up till now. Okay, so kindly take out your worksheet pack. Okay, and we are going to start from there. I'm sharing my screen with you. Okay, now this is what we studied in our last class of Islamiyat, that I told you about Hazrat Ayyub Raziyallahu anha, and I told you the story of Hazrat Ayyub. Okay, now there's a new rule that in every class, at the end of the class, I'm going to assign 2 to 3 people who will give me a recap of what we studied in the class. Okay, like for example, I'm saying that, you know, in my next class, I will probably ask Shamir, I will ask Aisha, and I will ask Wafa. Okay, I will ask you three whatever we are going to study today, and all of you three are going to give me a recap in our next class. Are we clear? Okay. I'm always going to pick 3 people, and they are always going to be different. Okay, so that way it is your responsibility to give me a recap. Okay. Yes, Ayan. How can I help you? Wait. Okay, Ayan. Hurry up so then we can start with our class. मैंने ये वर्कशीट पहले ही कर ली थी। Okay, that's good, man. Just go with me. Okay, अगर आप लोगों को कोई भी problems है तो वो अभी के अभी clear हो जाएंगे. Let's just stay with me. Okay, so after studying about Hazrat Ayyub Raziyallahu anha, we did these true and false. Do you guys remember that? Okay, we did this true and false in the class, that even the angels advised Hazrat Ayyub Raziyallahu anha. Yes, Shamil, what was the answer? True or false? Yes, Shamil. टीचर मेरा Can you tell me the answer, that even the angels admired Hazrat Ayyub Raziyallahu anha? Can you tell me the answer? True or false? टीचर ट्रू True. Why? Because automatically Hazrat Ayyub Raziyallahu anha हमारे एक angel थे, वो भी हमारे एक फरिश्ते थे, तो automatically क्या बात है कि हमारे जितने भी angels होंगे, जितने भी हमारे लोग थे, वो सारे के सारे क्या करते थे, उनको admire करते थे, जाहिर सी बात है, सही है. This is a fact. So number 1 was true. Number 2, all the children of Hazrat Ayyub Raziyallahu anha had gone to a festival. Yes, Fahad. What was the true and false? True or false? टीचर व्हाट All the children of Hazrat Ayyub Raziyallahu anha had gone to a festival. True or false? टीचर True.
Okay, I think you all have forgotten about the worksheet, so I'm giving you a little recap. Okay, so please just kindly listen कि आप लोग दोबारा ऐसा से बोले ना। हम लोगों ने इस वर्कशीट के अंदर क्या पढ़ा था? हम लोगों ने हज़रत अय्यूब रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में पढ़ा था। ओके, आई टोल्ड यू दैट अय्यूब का वर्ड का मतलब क्या होता है? इट मींस पेशेंट। सही है। तो हज़रत अय्यूब रज़ियल्लाहु अन्हु ये वाहिद हमारे जो है वो इस तरह के प्रॉफिट थे जिनके अंदर बहुत ज़्यादा सब्र था। इवन दो ही वाज वो बहुत सी मुश्किलात से गुजरे थे, उनको बहुत सी तकलीफें, उनको बहुत सी बीमारियों का सामना करना पड़ा था, बट स्टिल वो बहुत ज़्यादा पेशेंट रहे थे और उनका अल्लाह ताला के ऊपर एंड तक जो है वो यकीन क्या रहा था? पूरा रहा था। ओके, एट द एंड इवन दो ही वाज सफरिंग, इवन दो ही वाज suffering from many diseases, but still he had a firm faith on the Almighty Allah. Okay, then I told you about the story that Hazrat Ayyub anha used to be very rich. Okay, Hazrat Ayyub anha was a very rich man. Okay, he had a very vast amount of castle. Okay, उनके पास एक कैटल थी, बहुत सारी मतलब गोट्स और शीप्स हुआ करती थी और उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा रिच थे। सही है। देन आई टोल्ड यू कि एक दफा क्या हुआ था कि कुछ थीव्स थे, उन्होंने क्या करा था, उनके फार्म के ऊपर आके अटैक करा था, उनकी जितनी भी कैटल्स थी उन सबको क्या करा था, अपने साथ ले गए थे। सही है। तो हज़रत अय्यूब रज़ियल्लाहु को बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ था, बट स्टिल उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि अल्लाह ताला का शुक्र है, ये स्टिल अल्लाह ताला को वर्शिप करने के लिए कहा और उन्होंने कहा कि जो भी होता है अल्लाह ताला की बेहतरी, अल्लाह ताला बेहतरी के लिए करते हैं। सही है। ही स्टिल हैड अ फर्म बिलीव इन अल्लाह। सही है। उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर सम टाइम उनको जो है एक बीमारी हो गई थी। उस बीमारी में क्या हुआ था, ही हैड सम सोर्स। ओके, some sores all over his body. I told you what kind of a sore is. A sore is basically एक तरह की मतलब चोट कह सकते हैं या एक तरह का आप कोई दाना कह सकते हैं उससे। सही है। बेसिकली क्या था कि it was very bad and all kinds of different kinds of worms and everything was filled in it. सही है। उसके बाद क्या हुआ था, बट स्टिल उन्होंने अल्लाह ताला के ऊपर अपना यकीन नहीं छोड़ा। सही है। उसके बाद क्या हुआ था कि वन टाइम द रूफ ऑफ हिज हाउस फेल डाउन। सही है। वो एक दफा अपने घर में नहीं थे और क्या हुआ था कि उनकी घर की जो छत थी वो गिर गई थी। उसकी वजह से क्या हुआ था कि he had eight sons, six sons and six daughters. सही है। he had total 12 children. तो उसकी वजह से क्या हुआ था कि उनके जितने भी चिल्ड्रन सबकी सबकी डेथ हो गई थी ड्यू टू द फॉलिंग ऑफ द रूफ। सही है। बट स्टिल उन्होंने अल्लाह ताला को किसी भी किस्म की ये नहीं कहा था और उन्होंने कहा था कि मेरी आजमाइश है। अल्लाह ताला इज यू नो आपको ये बात पता होगी कि अल्लाह ताला हमेशा अपने बंदों को क्या करते हैं, आजमाते हैं। सही है। अब जब भी हमारे पेरेंट्स हमें क्या बोलते हैं हमेशा कि अगर हमारे साथ कोई बुरा वक्त गुजर रहा है, अगर हम लोगों के साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो क्या कहते हैं कि सब्र से काम लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि आने वाला वक्त क्या होगा, अच्छा होगा। सही है। बेसिकली दिस इज व्हाट वी मुस्लिम्स डू, वी ट्रस्ट अल्लाह। ओके, नो मैटर व्हाट हैपेंस। तो उसके बाद क्या हुआ था कि आफ्टर हिज sons died, after his daughters died, उनके सारे चिल्ड्रन की जब डेथ हो गई थी, तो क्या हुआ था कि उनकी जो डिजीज था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। सही है। जो बीमारी थी उनके पास सोर्स उनकी पूरी बॉडी को हो गए थे और जो वो बहुत ज्यादा अजीब तरीके से थे, वो हर वक्त बीमार रहने लग गए थे। उसकी वजह से क्या हुआ था कि उनकी जो वाइफ थी उन्होंने भी उनका साथ छोड़ दिया था। सही है। और वहां पे रहने वाले जितने भी लोग थे अरब में उस टाइम पे, वो सब क्या करते थे, उनका मजाक उड़ाने लगते थे। हज़रत अय्यूब रज़ियल्लाहु अन्हु। सही है। तो एट द एंड उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने अल्लाह ताला से प्रे करी थी। व्हाट डिड ही प्रे? He said that yeah, he said that God says the adversity has hit me and you are the most of the merciful. सही है। तो I told you adversity का क्या मतलब होता है। adversity किसे कहते हैं कि जब किसी भी किस्म का कोई बुरा वक्त फेस कर लो। सही है। adversity कहते हैं कि एक बहुत ज्यादा मुश्किल वक्त, बेसिकली सही है, टफ सिचुएशन। तो अल्लाह ताला ने क्या कहा था, अल्लाह ताला ने उनकी जो है वो प्रे, उनकी दुआ एक्सेप्ट कर ली थी और उन्होंने क्या कहा था कि आप जाके अपना जो है वो फुट जो है वो जमीन पे जाके मारे। जब उन्होंने ये करा था तो क्या हुआ था कि एक गश ऑफ स्प्रिंग जो है वो सामने आ गया था। मतलब अचानक से क्या हुआ था कि वहाँ लैंड से वाटर निकला था और जब उन्होंने उसमें बात किया था तो क्या हो गया था, वो बिल्कुल क्योर हो गए थे। उसके बाद हज़रत अय्यूब रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्या करा था कि अल्लाह ताला की ऊपर उनका फर्म ठीक हो गया था और उसके बाद उन्होंने और भी ज्यादा इस्लाम को स्प्रेड करने में हेल्प करी थी। सही है। दिस वाज द recap of the whole story which I have already studied, but I gave you a recap. Okay, I'm sorry it was a little fast forward. If everything is clear, just give me a thumbs up. Okay, I'm seeing Alishba, Kiran, Ayan. Okay, just give me a thumbs up, Maria. Okay,
So this was the story. Now let's move on to the worksheet. Okay, शायद अब आप लोगों को ज़्यादा दोबारा से easy लगे. Okay, first of all, let's go towards the true and false. Number one, even the angels led by Hazrat Ayyub Rizal Anha, Shamir already told us that it is true. Why? Because automatically Hazrat Ayyub Rizal Anha जो है वो हमारे नबी हुआ करते थे. तो automatically इसी बात है कि जितने भी नबी हैं उन सबको हमारे फरिश्ते क्या करते हैं? They admired them. Okay, क्यों? क्योंकि हमारे सारे नबियों ने क्या करा है? They had this spreading of Islam. सही है. Number two, all the children of Hazrat Ayyub Rizal Anha had gone to a festival. Yes, Ali. false. Why? Where were they gone? टीचर वो लोग घर में थे. Okay, they were at house, and because they died, so automatically they went to heaven instead of a festival. सही है. वो लोग किसी भी फेस्टिवल में नहीं गए हुए थे, बल्कि क्या हुआ था कि they were all at house. Okay. Number three, the devil praised Hazrat Ayyub Rizal Anha. Yes, Fahad. टीचर कौन सा आंसर, कौन सा क्वेश्चन? Number three, the devil Number praised three. Hazrat Ayyub Rizal Anha. टीचर the answer is the devil praised Hazrat Ayyub alayhi salam. Answer is false. Okay, the answer is false. Why? Because automatically जो भी हमारे जो शैतान है वो कभी भी हमारे किसी भी नबी को, किसी भी हमारे फरिश्तों को एडमायर नहीं करेगा और उसको ऑटोमेटिकली वो सब बुरे लगेंगे. प्रेज करने का क्या मतलब होता है? तो वर्ड प्रेज वी यूज तारीफ करने को. सही है. प्रेज करने का वर्ड कब यूज करते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँगी मैंने शामी को बहुत प्रेज करा, and I always do that. Why? Because he always get good marks in my class. Okay, so automatically मैं सिर्फ और सिर्फ शामी के साथ ये कर रही हूँ. अगर मैं किसी बच्चे को नहीं पढ़ाती होंगी तो मैं उसको जाके प्रेस करना स्टार्ट नहीं कर दूंगी. Why? Because I don't know कि वो स्टूडेंट कैसा है. सही है. So that's why जो डेविल है, जो हमारा शैतान है, वो कभी भी किसी भी फरिश्ते को, किसी भी नबी को प्रेस नहीं करेगा. Number four, Hazrat Ayyub Rizal Anha was sick for 18 years. Okay, I think I'm going to ask Aisha now. Yes, Aisha. Number four, true or false? True. Okay. Why? Because I already told you that it's also included in your worksheet that he was sick for 18 years, and number four is true. Okay. Now we're moving on to number five. Okay. And number five is a spring gush fort when Hazrat Ayyub Anha stamp is put on the ground. Okay. What I'm saying is that जब Hazrat Ayyub Anha ने अपना जो है foot जो है वो ground पे मारा तो एक gush of spring आया था. Gush of spring मतलब water आया था जैसे से बाहर. Yes, पापा. True or false? False. False? No, true. True. Why? Because यही वो वाटर है जिससे बाबा अय्यूब रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपने आप को बात किया था. उन्होंने नहाया था उस पानी से, तो क्या हो गए थे? उनकी सारी बीमारियां, सारे स्किन डिजीजेस क्या हो गए थे? क्योर हो गए थे. सही है. Okay, Zainab, be ready. I'm going to ask you the next question. Okay. Okay. Now we are moving on towards the question answers. Number one. With what gives it Allah the Almighty blessed the Ayyub Rizal Anha? Yes, Zainab. Teacher, he was rich Yes. or Okay. First, automatically अल्लाह ताला हमें किस तरह bless कर सकते हैं? अल्लाह ताला हमें जो है वो money दे सकते हैं in terms of money, in terms of family. Okay. So he was blessed with okay, fine. He was rich. Okay. And number two, just tell me one more point, Zainab. And number two is that he was blessed with 6 sons and 6 daughters. Okay, he was blessed with a very big family. Okay, is the answer number one clear? Okay, the answer number one is automatically that Ayyub Anha was blessed. Why? He was blessed with money. He was a rich man. And number two is that he was blessed with good family. Why? Because he had 6 sons and 6 daughters. Okay. तो अल्लाह ताला हर इंसान को जिसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं सिर्फ और सिर्फ उससे ही फैमिली दी जाती है, उससे ही सन्स और डॉटर्स देते हैं. हर इंसान को ये खुशी भी नसीब नहीं होती. ऑटोमेटिकली ही वाज ब्लेस्ड विद अ ग्रेट फैमिली. ओके, आर बी क्लियर? जस्ट गिव मी अ थम्स अप so we can move on to question number 2. Okay, I can see Wafa, Kirat,
Fahad. Yes, Zainab. Are we clear? Okay, Zainab, Aisha. Ali Aman, do you have any problem? Okay, Ali Aman. Hasif, are we clear? Okay, let's move on. Okay, I cannot see Umar in my class today. I wonder if he's sick or not. Okay, now number two. How did the Allah Almighty put Hazrat Ayyub Razi Ta'ala Anha to test? सही है उन्होंने ऐसा क्या करा था जो कि उनको जो है वो डिफरेंट तरह के टेस्ट से किस तरह से गुजारा था हजरत ने सही है ओके किरण would you like to answer us please yes Kiran you can unmute yourself hurry up Kiran you don't have whole day beta hurry up let's ask someone else then okay Shamit got it okay can you tell me that how did Allah Almighty put Hazrat Ayyub Ta'ala Anha to test और किस तरह से अय्यूब को टेस्ट से फेस करवाया था Teacher, यस लिसनिंग आपको पता है इसका मतलब क्या है इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि हजरत अय्यूब ताला अन्हा ने किस तरह हजरत अय्यूब को जो है वो अल्लाह ताला ने किस तरह हजरत अय्यूब को टेस्ट किया था ऐसे कौन कौन से मसले थे जिनसे उन्होंने गुजारा था teacher, yes his all cows that means all cows and that they will give the robber okay will okay so we can say that his okay so we can say that his wealth was taken from him सही है उनके जितने भी पैसे थे उनकी मनी थी वो क्या कर ली गई थी इनसे छीन ली गई थी यस and his all students were all kids were being dived within a broken off the roof and or and he has a like pimples or दाने टाइप के हो गए थे टीचर उनको yes Aurelia thank you Shamit yes Aurelia can you tell me that what were the tests जिनसे हजरत अय्यूब ताला को गुजारा था Miss, I came a little bit of late, so can you explain me again? just listen very carefully to our lectures automatically you will know at the end of the class okay so where's Aisha okay Aisha I have my faith in you can you tell me कि ऐसे कौन कौन से टेस्ट है जिनके जरिए उनको गुजरना पड़ा था yes Aisha Aisha we cannot hear you I will just tell you and we are going to move on is that उनको किस किस तरह की टेस्ट से गुजरना पड़ा था फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर वन टेस्ट क्या था कि ऑल ऑफ हिज वेल्थ वाज टेकन फ्रॉम हिम सही है वो बहुत ज़्यादा रिच हुआ करते थे उनके पास बहुत सारी कैटल्स थी फार्म के अंदर सही है जब जो है वो ऑटोमेटिकली उनकी कैटल्स को जो है वो थीव्स ने ले गए थे अपने साथ तो उनकी वेल्थ क्या हो गई थी चली गई थी सही है नंबर वन पॉइंट इज दैट ऑल ऑफ हिज वेल्थ वाज टेकन फ्रॉम हिम okay yes Ali Ahmed you're looking anxious okay number two teacher his family was died and he was he was ill he had sores exactly. in his body okay Ali Ahmed okay everyone kindly clap for him this was the answer I was looking for okay excellent Ali Ahmed why because what happened is that you know Ali Ahmed there's a word that we use you know his family was killed okay we use the word died जहाँ word died कब use करते हैं जब इंसान खुद ही मरता है सही है for example you know if someone gets sick or if someone passes away so we use the word died सही है but if someone you know faces an accident or if someone is attacked so हम लोग word को use करते हैं killed सही है so his family was killed due to the house the roof of the house falling down
सही है। और नंबर 3 क्या है कि ही सफर्ड फ्रॉम मैनी स्किन डिजीजेस जस्ट लाइक अली अहमद टोल्ड अस कि उनके बहुत सारी बीमारियां थी जो कि क्या कर रहे थे, वो उनको भी फेस कर रहे थे। सही है। तो ये वो टेस्ट है जिससे अल्लाह ताला ने क्या करा था, हज़रत अय्यूब रज़ी अल्लाह अन्हु को पास करवाया था। सही है। लेट्स मूव ऑन। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, what was a disease which affected Hazrat Ayyub Raziyallahu anha? Okay, I think up till now all of you know that which disease he was affected with a skin disease which were known as sores. सही है। और all of his sores were filled with worms. अगर आप चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं, लेकिन आपकी मर्जी, आप जितना बताना चाहें उतना बता सकते हैं। सही है। लेकिन आंसर क्या है इसका, कि उनको कौन सा डिजीज हुआ था? he had a skin disease. कौन सा डिजीज था? he had a skin disease जिसके अंदर उनको क्या हो गए थे, उनको सोर्स हो गए थे। सही है, ऑल ओवर हिज बॉडी। नंबर 4, हाउ डिड हज़रत अय्यूब रज़ी अल्लाह अन्हा ऑर्डील फाइनली एंड? सही है। ऑर्डील किसे यूज करते हैं हम लोग? वर्ड ऑर्डील हम लोग कहते हैं कि उनकी प्रॉब्लम जो थी वो किस तरह से खत्म हुई थी। सही है। ऐसा क्या हुआ था कि उनके सारे डिजीजेस जो है वो एंड हो गए थे। सही है। ओके सैनब, यस, how was his diseases cured? Teacher, he prayed to Allah, and Allah said that कि अपने पाँव जो है वो जमीन पे मारे, उसमें से जो पानी निकला था उससे उन्होंने धोया था, तो उनकी डिजीज खत्म हो गई थी। Okay. So what happened is that he prayed to Allah. Okay, and Allah Taala told him to just stamp his feet on the ground. क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा था अपने ग्राउंड को, अपने फुट को क्या करो, ग्राउंड के ऊपर स्टैम्प करो। जब उन्होंने स्टैम्प करा तो उसकी वजह से क्या हुआ था कि एक गश ऑफ स्प्रिंग जो है वो बाहर आया था। गश ऑफ स्प्रिंग किसे कहते हैं? गश बेसिकली कहते हैं कि जब पानी तेज स्पीड से बाहर निकले। सही है। और स्प्रिंग किसे कहते हैं? बेसिकली वाटर को। सही है। तो गश ऑफ स्प्रिंग क्या हुआ था, लैंड से बाहर आया था, और जब उन्होंने उससे बात किया था तो क्या हो गया था, ही वाज हील्ड। सही है। इस तरह क्या हुआ था कि उनकी ऑर्डील क्या हो गई थी, उनकी प्रॉब्लम्स क्या हो गई थी, एंड हो गई थी। ओके, एंड नंबर 5, व्हाट रिपोर्ट्स विद अल्लाह द अलमाइटी गिव हज़रत अय्यूब रज़ी अल्लाह अन्हा फॉर हिज यूनिक पेशेंस। सही है। अब ये जो है वो क्वेश्चन आपका होमवर्क है। सही है। इस क्वेश्चन का क्या मतलब है कि जब हज़रत अय्यूब रज़ी अल्लाह अन्हा ने इतने सारे अपनी मुश्किलात का सामना किया। सही है। उनकी फैमिली की डेथ हो गई थी, उनके मतलब सारे डॉटर्स और सन्स की डेथ हो गई थी, उनकी वाइफ ने उन्हें छोड़ दिया था, लोगों ने उनका मजाक उड़ाया था, इतने टाइम तक बीमार रहे थे। सही है। तो कह रहे कि इसके बाद अल्लाह ताला ने जब पूरा टेस्ट से फेस करा तो उन्होंने हज़रत अय्यूब रज़ी को क्या गिफ्ट दिया एंड में, जब उन्होंने सब चीज़ों से अच्छे से गुजर गए। सही है। जस्ट सर्च इट, यू विल फाइंड द आंसर। ओके, आई विल आस्क यू इन योर नेक्स्ट क्लास। Okay, if you are done, if you are clear up till now, just give me a thumbs up. Okay, you can unmute yourself. If you have any problem, you can ask me. Okay, now and there टीचर are मुझे सेकंड वाले का आंसर बता दें। okay, second वाले का आंसर बेटा ऑटोमेटिकली देयर इज नो सच थिंग एज फर्स्ट और सेकंड। सही है। आपको अब तक स्टोरी पता है तो आपको खुद ही पता होगा। नंबर 2 है कि हाउ डिड अलमाइटी पुट हज़रत अय्यूब टू टेस्ट। उन्होंने जब हज़रत अय्यूब रज़ी को किस तरह टेस्ट से गुजारा था लिस्बा, तो उन्होंने किस तरह गुजारा था, उन्होंने क्या नंबर करा 5 था, वाला होमवर्क है। फर्स्ट क्या हुआ था कि उनको बहुत सी बीमारियां हो गई थी। सही है। और जो है वो उनकी फैमिली भी, जो उनके सारे डॉटर्स और सन्स से उनकी डेथ हो गई थी। सही है। तो ये टेस्ट ही है सारे। ओके ये सच टीचर ये लास्ट वाला होमवर्क है। लास्ट वाला होमवर्क। लास्ट वाला क्वेश्चन। ओके, आई एम गिविंग यू 2 होमवर्क्स। सिर्फ एक क्वेश्चन तो ऑटोमेटिकली, आप कितने बड़े बच्चे होते हैं, प्यारे बच्चे के, आप लोग एक क्वेश्चन तो करेंगे नहीं। सही है। तो आपका सेकंड होमवर्क क्या है, जस्ट गो थ्रू। ओके, वर्कशीट निकालिए अपनी। ओके, आप लोग अपनी वर्कशीट किस वाले पेज के ऊपर है? यहाँ पे देखिए, यस टीचर। यहाँ पे देखिए आपको क्लाउड्स, कैन यू सी दैट? यस ओके, ये है राइट द नेम ऑफ 7 डोर्स ऑफ स्काई है। सही है। यहाँ पे हेवन लिखा हुआ है, हेवन को काट के स्काई कर दीजिए। सही है। अब आप लोगों को क्या है, जो स्काई है। ओके, डोर
डोर्स ऑफ स्काई है, डोर्स ऑफ हेवन नहीं है। मैं आप लोगों को जो है वो इनके नेम्स और इनके कलर्स जो है वो लिख के अपलोड कर दूंगी। आप लोगों को क्या करना है स्काईज के अंदर, गाइस लिसन वेरी केयरफुली, आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को जो है वो स्काईज के अंदर जो है वो कलर करना है, सही है। और इसके बाद क्या करना है कि उनका नेम लिखना है स्काईज के ऊपर, सही है। वो चीजें मैं आपके होमवर्क के अंदर अपलोड कर दूंगी, आप लोग को यूनिवर्सिटी से मिल जाएंगी। और काइंडली प्लीज 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 अपना होमवर्क आप लोग यूनिवर्सिटी पे अपलोड करना स्टार्ट कर दीजिए, सही है। सो दिस वाज इट फॉर टुडेज क्लास। हम लोग बाकी का अपना लेक्चर फ्राइडे को कंटिन्यू करेंगे। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड टुडेज लेक्चर एंड